जय जयकारा जय जयकारा स्वामी तेरा साथ हमारा जय आप सर्वने मारे जेना वाटे परम आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी અને સર્વ બહુશ્રુત પ્રતિભાઓ જે સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન છે એ સર્વને દીપ પ્રાગટ્ય માટે વિનંતી કરું છું. તમારામાંથી દરેકે દરેકના હૃદયનો સંપૂર્ણ ઉમળકો મોદી સાહેબના હૃદય સુધી પહોંચી રહ્યો છે એ એમના ચહેરાની ખુશનુમા તાસીર તરફથી આપણને ખબર પડી જાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મે આઈ પ્લીઝ પ્રોસીડ નાઉ. થેન્ક યુ. મુંબઈ સમાચારના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એચ.એન. કામા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એમ. કામા તેમજ એડિટર શ્રી નિલેશભાઈ દવે તરફથી પરમ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીને હવે આદરભર્યો સત્કાર રજૂ કરવામાં આવશે. મુંબઈ સમાચાર દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના અભિનવ સમિતિના સભ્યો હવે
પરમ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ભાવભર્યો સત્કાર અર્પણ કરશે. આપણે આપણી કાર્યવાહી આગળ વધારીએ. આપથી શાંતિની અપેક્ષા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મુંબઈ સમાચારના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી હોર્મસજી કામા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે મુંબઈ સમાચાર દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના અવસરે પધારેલા આ સર્વ બહુશ્રુત પ્રતિભાઓ સાથે પોતાની વાત આપ સર્વને કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. શ્રી હોર્મસજી કામા સાહેબ. Honorable Pradhan Mantri ji Narendra ji Modi, Honorable Governor Bhagat Singh ji, आमच्या खास मुख्यमंत्री उद्धवजी आणि फडणवीसजी देवेंद्र लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आज तुम्ही सगळं इथे आला. आम्ही आता 2 शब्द मराठीमध्ये सांगू. तुम्ही सगळं इथे आला तर आम्हाला फारच आनंद होते કે तुम्ही, હવે હું ગુજરાતીમાં બોલીશ કે નરેન્દ્રભાઈ બી આયા અને હવે આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતી, હું ગુજરાતી, તમે બધા ગુજરાતી, પણ રહેવાસી મહારાષ્ટ્રમાં. તો ગુજરાતીમાં આમંત્રણ આપવું કે મરાઠીમાં આમંત્રણ આપવું? પણ મારે ગુજરાતીમાં જ આપું. તો મુંબઈ સમાચારના કુટુંબ તરફથી નરેન્દ્રભાઈ અને સર્વને વેલકમ. અને આજ આનંદ છે કે તમે તમારો વિષય કાઢીને અહીં આવેલા છો. અમને આટલી રિસ્પેક્ટ આપી તે માટે અમારો આભાર. હવે નરેન્દ્રભાઈને આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ તો નહીં કરાય. લાર્જર એન્ડ લાઈફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. 54 નહીં પણ મારા હિસાબે 500 ઇંચની શરીર છે, છાતી છે. નરેન્દ્રભાઈ શું કરવું હવે? મારે બોલવા જ નથી દેતા. આ મોટી છાતી લઈને વિષય ટાઈમ કાઢીને એક નાના મુંબઈ સમાચારના કાર્યક્રમમાંથી આવ્યા. મારે એમાં બહુ આનંદ થયો, બહુ જ આનંદ થયો. થેન્ક યુ. 2 બોલ મુંબઈ સમાચાર માટે હું બોલીશ. 1812માં મુંબઈ સમાચારનું પ્રેસ ચાલુ થયેલું. 1812માં. 1822માં છાપું ચાલુ થયું. પણ 1812થી જે પ્રેસ ચાલુ છે તે આજ વેર ચાલુ છે. અને તે 1812માં અમારું પંચાંગ ચાલુ થયેલું. 1822માં ફદુનજી મરજબાને જ્યારે છાપું ચાલુ કીધું ત્યારે મનમાં આ જ હતું કે પારસી હોય કે જૈન હોય કે બોરી હોય, બધા ગુજરાતી વાંચકો ની એક ભાષા હોવી જોઈએ. ના તો પારસી ગુજરાતી, ના તો જૈન ગુજરાતી, શુદ્ધ ગુજરાતી, ના તો બોરી ગુજરાતી. એટલે કોમન ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં એ લોકોએ વિચાર કીધો કે છાપું ચાલુ કરું. અને 200 વર્ષમાં આજવેર
મારે આ જ અમારા તંત્રી છે નિલેશભાઈ તે જ ટ્રેડિશન ચાલુ રાખે છે કે જે ભાષા બધા સમજી શકે તે ભાષામાં મુંબઈ સમાચાર છપાય છે. 200 વર્ષ એક છાપો ચાલુ રહે તેનું કારણ શું? તમે વાંચકો, અમે કઈ તારીફ નહીં લઈ શકીએ, પણ તમે વાંચકો અમને એન્કરેજ કરો, અમને લખો કે આ ખોટું છે, આ સારું છે, અમને આ જોઈએ તે જોઈએ. તો તમે વાંચકો જ્યારે વાંચો ત્યારે છાપું ચાલે. તમે જો કાલે બંધ કરો વાંચવાનું તો બધા છાપા બંધ થઈ જાય. એટલે મારો આભાર છે તમારે માટે કે તમે 200 વર્ષ તમારું છાપું ચાલુ રાખ્યું. આપણા પ્રધાનમંત્રીજી છે, મારે 2 બોલ કરવા છે. જ્યારે પહેલી વાર હું એમને મળેલો ત્યારે એવન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. મારે ખબર નથી તમને યાદ છે કે નહીં. ને મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે મેં કહેલું કે નરેન્દ્રભાઈ તમે એક દિવસે દિલ્હી જશો. અને આજે મારે આનંદ છે કે મારા બોલ સાચા પડ્યા. તો નરેન્દ્રભાઈ વન્સ અગેન થેન્ક યુ. મારે જાસ્તી ટાઈમ નથી લેવો. આઈ થિંક બધા અહીં આવેલા છે. તમે તમારી સ્પીચ માટે, મારી સ્પીચ માટે, તો થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર કામા સાહેબ. હવે આપણે સ્ટેજ ઉપર જે બહુશ્રુત પ્રતિભાઓ વિરાજમાન છે એમનું અભિવાદન કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો હું સૌપ્રથમ જિગ્નેશ ખિલાણી અને આસિત મોદીને વિનંતી કરીશ કે એઓ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ગવર્નર શ્રી ભગતસિંહજી કોશિયારીનું અભિવાદન કરે. જિગ્નેશ ખિલાણી અને આસિત મોદી ભગતસિંહજી કોશિયારી સાહેબનું, ગવર્નરશ્રીનું અભિવાદન કરશે. નિલેશભાઈ દવે અને શ્રી એચ.એન. કામા સાહેબને વિનંતી કે મહારાષ્ટ્રના ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી ઉદ્ધવજી ઠાકરે સાહેબનું અભિવાદન કરે. અને કેતન કોટક અને દિલીપ જોશી, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આપણા લોકલાડીલા નેતા શ્રી દેવેન્દ્રજી ફડણવીસ સાહેબનું સ્વાગત કરે. જી જી, હું હવે આપના પ્રચંડ તાળીઓના ગડગડાટની સાથે શ્રી આપણા મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન શ્રી ઉદ્ધવજી ઠાકરે સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપને સંબોધે. શ્રી ઉદ્ધવજી ઠાકરે. आपल्या हिंदुस्थानचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब, माननीय राज्यपाल महोदय आहेत, माझे मित्र विरोधी पक्ष नेते महाराष्ट्राचे देवेंद्रजी आहेत, कामासाहेब आहेत आणि उपस्थित बांधवांनो आणि भगिनींनो, मला गुजरातीबद्दल प्रेम नक्कीच आहे,
आणि कामासाहेब आमच्या मी मानतो कुटुंबियांपैकी एक आहेत. पण गुजराती समजू शकतो, बोलू शकत नाही. आता मुंबई समाचार उद्यापासून सुरू करतो. नरेंद्रभाई, मला खरंच विश्वास बसत नाहीये आजच्या कार्यक्रमाबद्दल. एका वृत्तपत्राला 200 वर्ष होत आहेत. 200 वर्ष. आणि ते सुद्धा मला अभिमान आहे, मला आनंद आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गुजराती वृत्तपत्र 200 वर्ष यशस्वीपणाने वाटचाल करते, याचा मला अभिमान आहे. आणि तुम्ही एवढ्या टाळ्या वाजवताय म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना मराठी येते. मग हेच तर आपलं नातं आहे. गुजराती आणि मराठी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दुधात साखरेसारखे विरघळून गेलेले आहोत आपण. पण खरंच कामासाहेब, मी मनापासून सांगतो की गेल्या आठवड्यात ज्या वेळेला मला आमंत्रण आलं, मला माहिती होतं मुंबई समाचार खूप जुना पेपर आहे. आणि मला सांगण्यात आलं की मुंबई समाचारचा एक वर्धापन दिन आहे, स्वतः माननीय पंतप्रधान येत आहेत. तर मी सहज गमतीत म्हटलं की ती 200 वर्ष झाली का? तो हो 200 वर्ष झाली. अरे 200 वर्ष, 200 वर्ष म्हणजे तुम्ही 1822 साली वृत्तपत्र सुरू केलं. मोदीजी 1818 साली पेशवाई गेली आणि इंग्रजांचं राज्य सुरू झालं. म्हणजे तिथपासून आतापर्यंत जर जुन्या बातम्या काढल्या तर संपूर्ण आपला हा पारतंत्र्याच्या पासून आजपर्यंतचा इतिहास ह्या एका फक्त वृत्तपत्राच्या ऑफिसमध्ये मिळेल. 1857चं स्वातंत्र्य युद्ध, त्याच्यानंतर 2 महायुद्ध, मधल्या काळामध्ये सगळे क्रांतिकारक. म्हणजे आता आपल्यासमोर येताना राजभवनमध्ये गेलो होतो. अप्रतिम असं एक काम तिकडे सुरू झालेलं आहे. राज्यपाल महोदयांना मला खास धन्यवाद द्यायचे. एक ब्रिटिशकालीन बंकर सापडला आणि त्याचं रूपांतर त्यांनी या देशाच्या आझादीच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षी संपूर्ण सगळ्या क्रांतीवीरांची क्रांती गाथा त्याचं एक दालन केलेलं आहे. आणि मी मगाच्या भाषणात सुद्धा बोललो की ते खरं म्हणजे एक तीर्थक्षेत्र आता झालं पाहिजे, तीर्थस्थान. पण आजचा हा कार्यक्रम जो आहे, मुंबई समाचार वृत्तपत्र चालवणं किती कठीण असतं ते मला माहिती आहे. आम्ही पण चालवतो वृत्तपत्र. आणि काही काही वृत्तपत्र चळवळीमध्ये जन्म घेतात. जसं आचार्य रात्रेंचा मराठा होता, तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये जन्माला आला. कालांतराने चळवळ यशस्वी झाल्यानंतर तो बंद झाला. आज सुद्धा आपल्या लोकमान्यांचा केसरी 141 वर्ष झाली चालू आहे. म्हणजे मुंबई समाचार काय, केसरी काय, हे इतिहासाचे साक्षीदार पण आहेतच, पण ऐतिहासिक काम करणारे सुद्धा आहेत. म्हणजे ज्या केसरीमधनं लोकमान्यांनी तेव्हाच्या इंग्रज सरकारला सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय हा खडखडीत सवाल विचारला होता, ते वृत्तपत्र त्याला 141 वर्ष झाली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कामासाहेब, आपण अनेकदा भेटतो, आपण घरी पण येतात. मधल्या काळामध्ये थोडीशी आपली भेटगाठ कमी झाली. पण खरोखर तुम्हाला सांगतो, जर तुमच्याकडे हे सगळे संदर्भ असतील तर जसं एक क्रांतिगाथा हे दालन झालेलं आहे, तसं तुमचं मुंबई समाचारचं एक दालन जर का केलं तर त्या क्रांतीच्या पाऊलखुणा त्याच्यामध्ये सापडतील. 200 वर्ष, मी म्हणेन 200च वर्ष झालेली आहेत. पुढची अजून अनेक वर्ष मुंबई समाचार यशस्वीपणाने वाटचाल करणार आहे. मात्र आता एक काम करा की याच्या पुढची जी काय 200-500 वर्ष होणार आहेत त्याच्यामध्ये आता तंत्रज्ञान विकसित झालेलं आहे. प्रत्येक गोष्टी मग त्याच्यावरती तुमची मतं असतील, कारण शेवटी वृत्तपत्र हा एक आरसा असतो. तो समाजाला पण दाखवता येतो, आम्हाला राज्यकर्त्यांना पण दाखवावं लागतो कोण कुठे चुकतंय आणि योग्य दिशेने कसं जायचं हे सांगण्याचं काम, हे कर्तव्य हे वृत्तपत्र करत असतात, हे पत्रकार करत असतात. म्हणून याच्या पुढे सुद्धा जिथे जिथे आपण या काही चांगल्या चांगल्या घटना घडत आहेत त्याचं एक संकलन, जिथे जिथे आपली काही परखड मतं असतील त्याचं एक संकलन, की जेणेकरून आणखीन पुढच्या, मी जसं म्हटलं, जसं 100-200 वर्षांनी आपला कार्यक्रम होईल तेव्हा त्याचं सुद्धा एक दालन, मी तर म्हणेन 100 वर्षांनी का होईना पण नरेंद्रभाईंच्या हस्ते सतत लोकार्पण झालं पाहिजे. असो, मी आपल्या मुंबई समाचार परिवाराला शुभेच्छा देतो, आपल्या सर्वांना सुद्धा शुभेच्छा देतो. आणि आपलं हे जे नातं आहे
गुजरात आणि महाराष्ट्र, गुजराती आणि मराठी हे अधिकाधिक दृढ होत जावो अशी इच्छा अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ખૂબ ખૂબ આભાર ઉદ્ધવજી ઠાકરે સાહેબ. મુંબઈ સમાચારની આ અદ્વિતીય સિદ્ધિ, 200 વર્ષની અવિરત સફર, એને શૃંગાર ધરવામાં ભારત સરકાર પણ સહેજ પણ પાછી નથી પડી. પોસ્ટ એન્ડ કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટ્રી તરફથી આ નિમિત્તે મુંબઈ સમાચારના 200 વર્ષની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે એક ખાસ કમેમોરેટિવ સ્ટેમ્પ બહાર પડી રહી છે. વાહ! અને એ સ્ટેમ્પનું આલ્બમ મોદી સાહેબ સુધી લઈ આવવા માટે હું પોસ્ટ અને કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટ્રીના મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ, કેન્દ્રીય સરકાર શ્રી દેવસિંહ ચૌહાણને અને મુંબઈ નોર્થ ઇસ્ટના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ મનોજભાઈ કોટકને વિનંતી કરું છું કે સ્ટેમ્પનું આલ્બમ મોદી સાહેબ સુધી અને અન્ય બધી જ વિશિષ્ટ ડિગ્નિટરીઝ સુધી પહોંચાડે. મોદી સાહેબ થોડાક મિત્રો તાળીઓ પાડવામાં જરાક, હા, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આ નિમિત્તે એક બહુ જ સુંદર ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે અને એ ફિલ્મનું ઇનોગ્યુરેશન, મુંબઈ ટ્રેલરનું ઇનોગ્યુરેશન, મુંબઈ સમાચારની ફિલ્મના ટ્રેલરનું ઇનોગ્યુરેશન મોદી સાહેબ બટન ક્લિક કરીને કરશે. મોદી સાહેબને વિનંતી કરું છું. આ મુંબઈ છે, 200 વર્ષ પહેલાનું મુંબઈ. મુંબઈ એક એવું શહેર છે કે જેણે મહાન ઇતિહાસ રચ્યા છે. આ છે દક્ષિણ મુંબઈના ફ્લોરા ફાઉન્ટેનથી થોડાક અંતર પરનું રેડ હાઉસ બિલ્ડિંગ, જેનો પોતાનો ઇતિહાસ છે. અહીંથી પ્રકાશિત થાય છે એશિયાનું સૌથી જૂનું ગુજરાતી ભાષામાં છપાતું અખબાર મુંબઈ સમાચાર. આવો જોઈએ 200 વર્ષ પહેલાનું હસ્તસંચાલિત હેન્ડ ઓપરેટેડ ન્યૂઝપેપર પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ. એ વખતમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોવાથી એ પ્રેસ હાથે ચલાવાતો હતો. તેમાં 1 મિનિટમાં 12 પાના છપાતા હતા. એશિયાના સૌથી પ્રાચીન સમાચાર પત્ર મુંબઈ સમાચારના 200 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે એના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી હોર્મસજી એન કામાજી પોતાના વિચાર કંઈ આ પ્રમાણે વ્યક્ત કરે છે. 200 વર્ષ નાનું કામ નથી કોઈ બી છાપા માટે, કોઈ બી ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે નાનું કામ નથી. અને આનંદ બી થાય છે કે મુંબઈ સમાચાર 200 વર્ષ ચાલ્યું. અને આમ બી લાગે છે કે એક હમ્બલિંગ ફિલિંગ છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એશિયાના સૌથી જૂના 200 વર્ષ પહેલા છપાતા અખબારનું મુખપૃષ્ઠ. અને આ ચિત્ર છે એ અખબારના અને એશિયાના પ્રથમ તંત્રી શ્રી ફરેદુનજી મર્ઝબાનની. તેમણે 1822ની સાલથી 1832ની સાલ સુધી તેમની કુશળતા અને આગવી સૂઝથી અખબારનું સંપાદન કરીને આરંભથી તેનો પાયો મજબૂત બનાવ્યો. આવો સાંભળીએ
મુંબઈ સમાચારના બીજા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી મહેરવાનજી આર કામાના મુખેથી. हमने घनी प्राइड है कि मुंबई समाचार एशियाનું ઓલ્ડેસ્ટ ન્યૂઝપેપર છે. It is not only Asia's oldest paper but the third oldest paper in the Commonwealth and ranks amongst the 50 oldest newspapers in the world. આ અખબારના માલિકોના એ વિચારો પણ પ્રશંસનીય છે કે સમય આગળ વધતા જે નવા યંત્રો આવે તેને અપનાવતા ગયા, પરંતુ તેમણે દરેક જૂના પ્રિન્ટિંગ મશીનને ખૂબ સારી રીતે જાળવી રાખ્યા છે. મુંબઈ સમાચારની 200 વર્ષની નિરંતર સફળતાનું રહસ્ય શું છે? આવો જાણીએ તેના તંત્રી નિલેશ દવે પાસેથી. લાખો વાચકોની આ એક માન્યતા રહી છે કે મુંબઈ સમાચારમાં જે પણ સમાચાર આવ્યા હોય એ સાચા જ હોય. છેલ્લા 200 વર્ષથી મુંબઈ સમાચાર વાચકોની આ માન્યતાઓ ઉપર ખરું ઉતર્યું છે. હવે આપણે અહીં પાછળ જોઈ રહ્યા છીએ આધુનિક એટલે કે લેટેસ્ટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, જે થોડી મિનિટોમાં સેંકડો અખબાર છાપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 2 સદીઓं से चला निरंतर सफर अभी तक जारी है, अगली सदी को गले लगाने की कर ली तैयारी है. हर वाचक ने हर दिन ही विश्वास जताया है इतना, हमने खुद ही और बढ़ा ली अपनी जिम्मेदारी है. થેન્ક યુ શોભિતભાઈ. મુંબઈ સમાચાર અને જેના માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ એવા ભારત ભાગ્ય વિધાતા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને હું વિનંતી કરીશ આપણું માર્ગદર્શન કરે. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई समाचार के एमडी श्री एच.एन. कामा जी, मेहरबान कामा जी, एडिटर भाई निलेश दवे जी, अखबार से जुड़े सभी साथी, देवी और सज्जनों, पहला तो निलेश भाई जे कहूं एनी सामे मारो वांधो पहला नोंधावी दઉં. एमणे कहूं भारत भाग्य विधाता. भारत भाग्य विधाता जनता जनार्दन छे. 130 करोड़ देशवासी छे. हूँ तो सेवक छू. मने एम थाय कि आज हूँ ना आव्यो होत तो कामा साहेब मने विचार आव्यो कि आज हूँ ना आव्यो होत तो मैं घणुं बधुं गुमाव्युं होत. कारण आमथी जोवानुं शरू करूं छुं, लगभग बधा परिचित चेहरा देखाय छे. आटला बधाने एक साथे दर्शन करवानो मोको मळे एनाथी विशेष आनंद शुं होय. त्याथी खीचड़ी हाथ ऊंचा करी के पगे लागे छे. मुंबई समाचार के सभी पाठकों, पत्रकार और कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं. इन 2 सदियों में
अनेक पीढ़ियों के जीवन को, उनके सरोकारों को मुंबई समाचार ने आवाज दी है। मुंबई समाचार ने आजादी के आंदोलन को भी आवाज दी और फिर आजाद भारत के 75 वर्षों को भी हर आयु के पाठकों तक पहुंचाया। भाषा का माध्यम जरूर गुजराती रहा, लेकिन सरोकार राष्ट्रीय था। विदेशियों के प्रभाव में जब ये शहर बॉम्बे हुआ, बंबई हुआ, तब भी इस अखबार ने अपना लोकल कनेक्ट नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं तोड़ा। ये तब भी सामान्य मुंबई कर का अखबार था और आज भी वही है मुंबई समाचार। मुंबई समाचार के पहले संपादक मेहरजी भाई के लेख तो उस समय भी बहुत चाव से पढ़े जाते थे। इस अखबार में छपी खबरों की प्रामाणिकता संदेह से परे रही है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल भी अक्सर मुंबई समाचार का हवाला देते थे। आज यहां जो पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ है, बुक कवर रिलीज हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, उनके माध्यम से आपका ये अद्भुत सफर देश और दुनिया तक पहुंचने वाला है। साथियों, आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं कि कोई न्यूज़पेपर 200 साल से चल रहा है, तो आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है। आप देखिए, जब यह अखबार शुरू हुआ था तब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बीते 2 वर्षों में हम सभी ने अनेक बार 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू की चर्चा की है, लेकिन अखबार उस वैश्विक महामारी से भी 100 साल पहले से शुरू हुआ था। तेजी से बदलते दौर में जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं, तब हमें आज मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने का महत्व और ज्यादा समझ में आता है। और ये भी बहुत सुखद है कि मुंबई समाचार के 200 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का संयोग इस वर्ष ही बना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ भारत की पत्रकारिता के उच्च मानदंडों, राष्ट्रभक्ति के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का ही उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव की भी शोभा बढ़ा रहा है। जिन संस्कारों, जिन संकल्पों को लेकर आप चले हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को जागरूक करने का आपका ये महायज्ञ अबाध ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम पर नहीं है, बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। भारत कैसे हर झंझावात के बावजूद अटल रहा, उसकी झलक
हमें मुंबई समाचार में भी मिलती है। समय, काल, परिस्थिति के हर बदलाव के साथ भारत ने खुद को बदला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को और मजबूत किया है। मुंबई समाचार ने भी हर नए बदलाव को धारण किया। सप्ताह में एक बार से सप्ताह में 2 बार, फिर दैनिक और अब डिजिटल, हर दौर की नई चुनौतियों को इस समाचार पत्र ने बखूबी अपनाया है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपने मूल पर गर्व करते हुए कैसे बदलाव को अंगीकार किया जा सकता है, मुंबई समाचार इसका भी प्रमाण है। साथियों, मुंबई समाचार जब शुरू हुआ था तब गुलामी का अंधेरा घना हो रहा था। ऐसे कालखंड में गुजराती जैसी भारतीय भाषा में अखबार निकालना इतना आसान नहीं था। मुंबई समाचार ने उस दौर में भाषाई पत्रकारिता को विस्तार दिया। इसकी सफलता ने को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा साप्ताहिक पत्रों से आजादी के आंदोलन को धार दी। सुब्रमण्यम भारती की कविताओं, उनके लेखों ने विदेशी सत्ता पर प्रहार किए। साथियों, गुजराती पत्रकारिता भी आजादी की लड़ाई का बहुत प्रभावी माध्यम बन गई थी। फरदून जी ने गुजराती पत्रकारिता की एक सशक्त नींव डाली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अपना पहला अखबार इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, जिसके संपादक जूनागढ़ के मनसुख लाल नागर थे। इसके बाद पूज्य बापू ने पहली बार एडिटर के रूप में गुजराती अखबार नवजीवन की कमान संभाली, जिसे इंदुलाल याग्निक जी ने उनको सौंपा था। एक समय में एडी गोरवाला का ओपिनियन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में काफी लोकप्रिय था। इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप के चलते प्रतिबंध लगा तो उसके साइक्लोस्टाइल प्रकाशित होने लग गए थे। आजादी की लड़ाई हो या फिर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, पत्रकारिता की एक बहुत अहम भूमिका रही है। इसमें भी गुजराती पत्रकारिता की भूमिका उच्च कोटि की रही है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में भी भारतीय भाषाओं की एक अहम भूमिका रहने वाली है। जिस भाषा को हम जीते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, उसके माध्यम से हम राष्ट्र की क्रिएटिविटी को निखारना चाहते हैं। इसी सोच के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेडिकल पढ़ाई हो, साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, वो स्थानीय भाषा में कराने का विकल्प दिया गया है। હવે ગામડાનો ગરીબ માનો દીકરો કે દીકરી ગુજરાતીમાં 12મું ધોરણ ભણીને પણ ડોક્ટર બની શકશે। इसी सोच के साथ भारतीय भाषाओं में दुनिया के बेस्ट कंटेंट के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। साथियों, आज एक और पक्ष के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि इस अखबार को शुरू किया फरदून जी मुर्जबान ने, और जब इस पर संकट आया तो इसको संभाला कामा परिवार ने। इस परिवार ने इस समाचार पत्र को नई ऊंचाई दी। जिस लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया था, उसको मजबूती दी। साथियों, भारत का हजारों वर्षों का इतिहास
हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहां जो भी आया, छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या बलवान, सभी को मां भारती ने अपनी गोद में फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया। और पारसी समुदाय से बेहतर इसका उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। जो कभी भारत आए थे, वो आज अपने देश को हर क्षेत्र में सशक्त कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन से लेकर भारत के नवनिर्माण तक पारसी बहन भाइयों का योगदान बहुत बड़ा है। संख्या से हिसाब से समुदाय देश के सबसे छोटे समुदायों में से हैं। एक तरह से माइक्रो माइनॉरिटी है, लेकिन सामर्थ्य और सेवा के हिसाब से बहुत बड़ा है। भारतीय उद्योग, राजनीति, समाज सेवा, न्यायतंत्र, खेल, पत्रकारिता, इवन सेना, फौज में, हर क्षेत्र में पारसी समुदाय की छाप दिखती है। અને હું ગુજરાતમાં તો જરૂર કહેતો હોઉં છું કે અમને ગુજરાતના લોકોને કોઈ હસતા શીખવાડ્યું હોય તે પારસીએ શીખવાડ્યું. કારણ પારસી થિયેટર એટલે તમે પેટ પકડીને હસતા રહો. તમારો કોઈનો પારસી પરિવાર જોડે સંબંધ આવ્યો હોય તો તમને કાયમ એ લોકો ખુશમિજાજ જ દેખાય. એમના પરિવારમાં જાઓ તો તમે હસે વિના રહી ન શકો. ગમે તેવી કઠિનમાં કઠિન વાત હળવાશથી કરવી એનું નામ પારસી. साथियों, भारत की यही परंपरा है, यही मूल्य है जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं. साथियों, लोकतंत्र में चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो, संसद हो या न्यायपालिका हो, हर घटक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी निश्चित भूमिका है. इस भूमिका का सतत निर्वाह बहुत आवश्यक है. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, જેનું કામ તેનું થાય, બીજા કરે તો ગોતા ખાય. पारसी परिवार में सापड़वा भले. यानी जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए. राजनीति हो, मीडिया हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्र, सभी के लिए ये कहावत प्रासंगिक है. समाचार पत्रों का, मीडिया का काम समाचार पहुंचाना है, लोक शिक्षा का है. समाज और सरकार में कुछ कमियां हैं तो उनको सामने लाने का है. मीडिया का जितना अधिकार आलोचना का है, उतना ही बड़ा दायित्व सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है. बीते वर्षों में मीडिया ने एक बड़े वर्ग ने राष्ट्रहित से जुड़े, सामाजिक हित से जुड़े अभियानों को बढ़ चढ़कर अपनाया है. उसका सकारात्मक प्रभाव आज देश अनुभव कर रहा है. स्वच्छ भारत अभियान से अगर देश के गांव और गरीब का जीवन, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, तो इसमें कुछ मीडिया के लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रशंसनीय भूमिका निभाई है. आज भारत अगर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अग्रणी है, तो लोक शिक्षा का जो अभियान मीडिया ने चलाया, उससे देश की मदद हुई है. आपको खुशी होगी, डिजिटल लेन देन दुनिया का 40% कारोबार अकेला हिंदुस्तान करता है. बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार हमारे पत्रकार साथियों ने राष्ट्रहित में एक कर्मयोगी की तरह काम किया, उसको भी हमेशा याद किया जाएगा.
भारत के मीडिया के सकारात्मक योगदान से भारत को 100 साल के इस सबसे बड़े संकट से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिली। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में देश का मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका का और विस्तार करेगा। ये देश डिबेट और डिस्कशन के माध्यमों से आगे बढ़ने वाली समृद्ध परिपाटी का देश है। हजारों वर्षों से हमने स्वस्थ बहस को, स्वस्थ आलोचना को, सही तर्क को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। हमने बहुत कठिन सामाजिक विषयों पर भी खुलकर स्वस्थ चर्चा की है। यही भारत की परिपाटी रही है जिसको हमें सशक्त करना है। साथियों, आज मैं मुंबई समाचार के प्रबंधकों, पत्रकारों के विशेष रूप से उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके पास 200 वर्षों का जो आर्काइव्स है, जिसमें भारत के इतिहास के अनेक टर्निंग पॉइंट दर्ज है, उसको देश दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि मुंबई समाचार अपने इस पत्रकारीय खजाने को अलग अलग भाषाओं में किताबों के रूप में जरूर देश के सामने लाने का प्रयास करे। आपने महात्मा गांधी के बारे में जो रिपोर्ट किया, स्वामी विवेकानंद जी के रिपोर्ट किया, भारत की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को बारीकी से समझाया, ये सब अब रिपोर्ट मात्र नहीं है, ये वो पल है जिन्होंने भारत के भाग्य को बदलने में भूमिका निभाई है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा खजाना कामा साहब आपके पास है और देश इंतजार कर रहा है। भविष्य में पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ा सबक आपके इतिहास में छुपा है। इस और आप सभी जरूर प्रयास करें। और आज 200 वर्ष, मैंने पहले भी कहा, ये यात्रा कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे और 200 साल तक नियमित चलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे निमंत्रण दिया, आप सबके बीच आने का मौका मिला। इतने बड़े विशाल समुदाय से मिलने का मौका मिला। और मैं कभी एक बार यहाँ मुंबई में किसी साहित्य के कार्यक्रम में आया था, शायद हमारे सुरेश भाई दलाल ने मुझे बुलाया था। उस दिन मैंने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र એ ગુજરાતી ભાષાનું મોસાળ છે। एक बार फिर आप सभी को मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कामा परिवार को अपने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की है, पूरा परिवार आपका बधाई के पात्र है। और मैं मुंबई समाचार के सभी पाठकों को भी, वाचकों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कामा साहब ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे। 200 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये घर में एक अखबार नियमित पढ़ा जाए, देखा जाए, सुना जाए, ये अपने आप में भी उस अखबार की बहुत बड़ी ताकत है जी। और उस ताकत देने वाले आप लोग हैं। और इसलिए मैं गुजरातियों की इस सामर्थ्य को मैं बधाई देना चाहूंगा।
मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, आज भी एक देश ऐसा है जहां एक शहर में, मैं विदेश की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार गुजराती है। इसका मतलब हुआ कि गुजराती लोग शायद जल्दी समझ जाते हैं किस चीज में कहां ताकत है। चलिए, हंसी खुशी की शाम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। શૂન્ય પાલનપુરી શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે। મોદી સાહેબને શૂન્ય પાલનપુરીના એક શેરથી આપણે વિદાય આપીએ કે મનને માસમ બોલથી બહેલાવનારા આપ છો, ઝેર પી જઈને અમી સર્જાવનારા આપ છો। થેન્ક યુ વેરી મચ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर हैं। मुंबई समाचार के अध्यक्षता